کہ بچے کی بھی بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں والدین پر، اور اگر والدین ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی مجرم ہوں گے، جس طرح کے بچے مجرم ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں والدین پر؟ بچوں کے کیا حقوق ہیں والدین پر؟ بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق۔ اور اس واقعہ سے ہم کو پتا چلا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے باپ ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے، ایک دیندار اور صالح عورت کا انتخاب کرے، ایک پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کرے، پڑھی لکھی عورت کو اپنی اولاد کی ماں کے طور پر انتخاب کرے۔ انشاءاللہ عزیز، جب ایک پڑھی لکھی عورت سے شادی کرے گا اور ایک پڑھی لکھی عورت اور ایک پڑھی لکھی لڑکی کو اپنی اولاد اپنے بچوں کی ماں بنائے گا تو ان بچوں کی تربیت کچھ اور ہی ہوگی اور ان بچوں کا مستقبل کچھ اور ہی ہوگا۔ تو ان بچوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت دینا، انہیں مناسب تعلیم دینا، انہیں صحیح تربیت دینا۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہم کہاں سے شروع کریں، کس ایج سے اور کس عمر سے بچوں کی تربیت شروع کریں؟ میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت بچوں کے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں، بلکہ بچوں کی تربیت کی شروعات ہوتی ہے بچوں کی ماں کے انتخاب سے، بچوں کی ماں کے انتخاب سے۔ کہ بچوں کی ماں، ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزیں دے کر، چار چیزوں کو بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، یا تو عورت کی مالداری دے کر کے شادی کی جاتی ہے کہ اس عورت سے شادی کی جائے، اس لڑکی سے شادی کی جائے جو مالدار ہیں، جو مالدار ہے لڑکی، جس کے گھر والے مالدار ہیں، تاکہ ہمیں وراثت میں زیادہ مال ملے یا کچھ اور زیادہ ملے ہمیں۔ لمالہا ولحسبہا، یا اس کا خاندان دے کر کے شادی کی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کتنا نامور خاندان ہے، کیسا خاندان ہے، عزت والا ہے یا نہیں ہے۔ وجمالہا، یا اس لڑکی کی خوبصورتی دے کر کے شادی کی جاتی ہے۔ ولدینہا، اور اس کی دینداری دے کر کے شادی کی جاتی ہے۔ چار چیزیں، یا تو اس کی مالداری کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا تو پھر اس کی مالداری کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر بذات الدین، گرچہ دنیا والوں کا نقطہ نظر اور ان کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی پسند کہ وہ مالدار لڑکیوں سے شادی کرے، جیسے یہودیوں کا طریقہ رہا۔ کچھ لوگوں کی پسند ہوتی ہے کہ وہ اس کا خاندان حسب نسب دے کر کے شادی کیا جائے یا اس کی خوبصورتی کو دے کر کے شادی کی جائے۔ لیکن تم کیا کرو؟ فاصبر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو، دیندار لڑکی سے تم شادی کرو، اس کو تم ترجیح دو۔ تمہارے سامنے اگر چاروں قسم کی لڑکی جمع ہو جاتی ہے، کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو مالدار ہیں، کچھ ایسی لڑکیاں جو خوبصورت ہیں، کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو اونچے خاندان کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دیندار ہیں، تو آپ دیندار لڑکیوں کو ترجیح دو، دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، دیندار لڑکیوں کو اپنے بچوں کی ماں بناؤ۔ اور اگر کسی لڑکی میں یہ چاروں چیزیں مل جائے تو اس کو بہت ہی خوبصورت، وہ نور والا نور ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ چاروں صفتیں کسی لڑکی کے اندر، کسی عورت کے اندر نہیں ہے، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو تم دینداری کو ترجیح دو اور دیندار سے شادی کرو۔ تو میرے بھائیوں، بچے کا پہلا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ماں ایسی لڑکی کو بنائیں، منتخب کریں، ایسی عورت کا انتخاب کریں جو دیندار ہو، دیندار۔ اب وہ دیندار لڑکی ملے گی کہاں سے؟ ہم ہی تو ماں باپ ہیں نا، ہمارے جہاں لڑکے ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بہو دیندار تلاش رہے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی بہو کے لیے اپنی بیٹی کو بھی دیندار بنانا پڑے گا، اپنی بیٹیوں کو بھی کی دیندار بنانا پڑے گا، انہیں بھی صحیح تعلیم و تربیت دینی پڑے گی۔ تو بچوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ
अपनी बच्चियों की भी सही तालीम और तरबियत देनी, उन्हें भी दीनदार बनाना। तो मेरे भाइयों, पहला यह हक है कि हम अपने बच्चों के लिए सही माँ का इंतखाब करें और सही एक पढ़ी लिखी और एक दीनदार औरत को अपने बच्चों की माँ के तौर पर इंतखाब करें। उसके बाद तरबियत वहीं से शुरू होती है। अगर हमने अपने बच्चों की माँ के तौर पर किसी दीनदार लड़की को मुंतखब ना करके महज इस बुनियाद पर किसी लड़की से हमने शादी की कि फला लड़की के वालिदैन मालदार हैं, अगर मैं उस लड़की से शादी करता हूं तो मुझे 5 लाख 10 लाख रुपये बतौर जहेज के मिलेगा और इस रुपयों के साथ साथ मुझे बहुत सारे सामान भी मिलेंगे, या महज इस बुनियाद पर कि ये लड़की ज्यादा खूबसूरत है इसलिए मैं इससे शादी करता हूं, या उसका खानदान बड़ा है, कतई नजर कि उसके अंदर दीनदारी है या नहीं, उसके अंदर सही तालीम और तरबियत है कि नहीं, तो आप फौरी तौर के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ वक्त के लिए तो आपको सुरूर मिलेगा, आपको इत्मीनान मिलेगा, लेकिन वो एक तरह से आप अपने बच्चों का हक को जाय कर रहे हैं। एक गैर मुहज्जब लड़की, गैर दीनदार लड़की, जिसकी सकाफत दुरुस्त ना हो, जिसकी तहजीब दुरुस्त ना हो, जिसका रहन सहन दुरुस्त ना हो, एक खूबसूरत तो है लेकिन अखलाक और किरदार के एतबार से बेढब है, एक खूबसूरत मालदार तो है लेकिन दीन के बारे में उसके कोई जानकारी नहीं है, एक ऊंचे खानदान की लड़की तो है लेकिन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो गोया कि मेरे भाइयों, आप ऐसी लड़कियों शादी करके, ऐसी औरतों शादी करके आप अपने बच्चों को जाय कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों की मां के तौर पर पहली फुर्सत में अव्वलीन तरजीह आपकी होनी चाहिए कि आप अपनी बहू के, अपनी बीवी के तौर पर, या अगर बाप ससुर हैं तो आप अपनी बहू के तौर पर ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो दीनदार हो, जो तालीम याफ्ता हो। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम दिया जाए, मुनासिब नाम दिया जाए, नाम के भी बहुत सारे असरात होते हैं, अच्छा नाम मुंतखब किया जाए और जब पढ़ने लिखने के करीब हो जाए तो उसे अच्छी जगह और उसे अच्छी तालीमी इदारे में भेजकर उसको तालीम दिया जाए। मेरे भाइयों, मैं यहाँ आपकी तवज्जो थोड़ा मबसूल करना चाहूंगा। बच्चों की तालीम और तरबियत के एतबार से, बिलखुसूस तरबियत के एतबार से, बच्चों को 3 कैटेगरीज में हम तकसीम कर सकते हैं उम्र के एतबार से। 3 कैटेगरीज। पहला मरहला आता है बच्चों का 0 एज से लेकर 0 यानी पैदाइश के पहले दिन से लेकर के 7 साल तक। ये बहुत ही अहम बात है मेरे भाइयों। अगर हम अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत देना चाहते हैं तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें मालूमात होना चाहिए। तो पहला मरहला आता है पैदाइश के पहले दिन से लेकर के 7 साल की उम्र तक, और दूसरा मरहला 7 साल से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक, और तीसरा और आखिरी मरहला आता है ये 14 साल से ऊपर। और तरबियत के एतबार से ये तीनों मरहले के अलग अलग अंदाज हैं और उसके अलग अलग जरूरतें और अलग अलग एहतियाजात हैं, अलग अलग जरूरतें हैं मेरे भाइयों, अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों को जानना जरूरी है कि 7 साल तक बच्चे को किस अंदाज में तरबियत दिया जाए, 7 साल से 14 साल तक बच्चे को किस उसलूब में तरबियत दी जाए, और उसके बड़ा हो जाए तो किस तरह से उसे तरबियत दी जाए। मेरे भाइयों, 7 साल से 0 साल से लेकर के 7 साल तक ये मुहक्किकीन और जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनकी तहकीक है कि ऐसे इस उम्र के बच्चों के ज़हन दिमाग में तमीज की सलाहियत नहीं होती, सही और गलत चीजों के दरमियान फर्क नहीं कर पाते, अच्छे और बुरे कामों के दरमियान फर्क नहीं कर पाते, सही और गलत क्या है, दुरुस्त और नादुरुस्त क्या है, मुनासिब गैर मुनासिब क्या है, इसकी उसे तमीज नहीं होती। फिर जब उसको समझ में नहीं आता कि ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता, ये गलत है और ये सही है, ये मेरे लिए मुनासिब है, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इसके दरमियान वो तमीज नहीं कर पाता, तो इस मरहले में फिर उसे तरबियत कैसे दी जाए, किस तरह से उसे तरबियत दी जाए, वो या वो बच्चा किस तरह से वो फिर हासिल करता। मेरे भाइयों,
अजीजों, माहिर नफ्सियात का कहना है कि इस पीरियड में 0 साल से लेकर के 7 साल तक बच्चा एक सीसीटीवी कैमरा के मानिंद होता है। सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारी मस्जिदों में वो कैमरे लगे हुए हैं, और मस्जिदों में नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन वगैरह, एयरपोर्ट या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग हॉल होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और उन कैमरों के पीछे एक कंट्रोलर होता है जो सबकी निगरानी करता है कौन क्या कर रहा है। तो इन दरमियान, इस उम्र में, इस मरहले में बच्चे सीसीटीवी कैमरे के मानिंद होते हैं। यानी वो सिर्फ हमें देखते हैं, वो हमें देखते, हमारी निगरानी करते हैं। वो बच्चा देखता कि मेरा अब्बू क्या कर रहा है, मेरी अम्मी क्या कर रही है, मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेरी बड़ी बहन क्या कर रही है, मेरा दादा क्या कर रहे हैं, मेरी दादी क्या कर रही है। ये सिर्फ देखता है, और जो कुछ देखता मेरे भाइयों, उसको अपने ज़हन और दिमाग में उसे रिकॉर्ड करता है। और ये भी आपको मालूम है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल खाली जहन होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। और अगर आज के जमाने में, इस कंप्यूटर के जमाने में अगर हम उसकी मिसाल दें, तो एक बच्चा, जो नया बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल न्यू ब्रांड कंप्यूटर होता है, जिसके हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, कोई चीज उसके अंदर कोई ऑडियो और कोई वीडियो नहीं होता। वो प्रोग्राम, वो कंप्यूटर, वो प्रोग्राम से ऐसा खाली होता है कि उस कंप्यूटर को पता भी नहीं कि दो को दो के साथ जमा किया जाए, जोड़ दो कितना होता है, उसका भी वो जवाब नहीं दे सकता। जबकि उस कंप्यूटर के अंदर सलाहियत होती है, वो कंप्यूटर हवाई जहाज उड़ा सके, वो कंप्यूटर ये क्या नाम है, सैटेलाइट को उसकी जगह तक पहुंचा सके, वो कंप्यूटर की सलाहियत एक रॉकेट को किसी मरीज तक पहुंचा सके, ये कंप्यूटर की सलाहियत होती है। ये उस कंप्यूटर की कब सलाहियत होती है, जब उसके अंदर उस तरह का प्रोग्राम डाला जाता है। लेकिन नया कंप्यूटर, न्यू ब्रांड कंप्यूटर के अंदर कोई सलाहियत नहीं होती है, वो 2 जमा 2 का भी जवाब नहीं दे सकता है। ऐसे एक नया बच्चा जब पैदा होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। वो पैदा होने के बाद फिर उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है, और ये प्रोग्रामिंग किस मरहले में होता, यही 7 साल, 0 साल से लेकर के 7 साल। ये जो इस 7 साल तक अपने घर वालों को जो देखता है, कहते हुए, करते हुए, घर का जो माहौल देखता है, घर की दीवारों पर जो चीजें चस्पा रहती है वो देखता है, घर के आने जाने वालों लोगों को देखता है, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी बातें, उनके काम, ये सब कुछ देखता है, और वो अपने जहन में उसको रिकॉर्ड करता है। और मेरे भाइयों, ये 7 साल तक इंसान का एक बच्चा जो एक बहुत बड़ा दिमाग लेकर इस दुनिया में आता है, 95% वो अपना दिमाग भर लेता है, अपना दिमाग 95% भर लेता है। और ये जो 7 साल तक 95% अपना दिमाग भरा, यही उसका माइंड बन जाता है, ट्रेन्ड माइंड। और फिर 7 साल के बाद जो उसके दरमियान सही गलत की तमीज का सलीका होता है, और अच्छे बुरे की तमीज का सलीका पैदा होता है, और सही रास्ता गलत रास्ता, वो अब सही रास्ता और गलत रास्ता, किसको सही कहेगा और किसको गलत कहेगा, दुरुस्त और नादुरुस्त किसको कहेगा, उसके दिमाग में जो रिकॉर्ड हो चुका है, जो कुछ देखा है उसको, उसके दिमाग में जो रिकॉर्ड हो चुका है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक किसी चीज को अच्छा समझेगा, किसी को बुरी चीज समझेगा, किसी को अच्छा रास्ता समझेगा, दूसरे को बुरा रास्ता समझेगा, जो दिमाग में रिकॉर्ड है। तो मेरे भाइयों, तो इस मरहले में बच्चों की तरबियत से मुतालिक उसका ये पहला मरहला बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उसका दिमाग, यानी गोया के एक बच्चा जो बिल्कुल
ये न्यू ब्रांड कंप्यूटर की तरह इस दुनिया में आता है, तो इस 7 साल में एक उसका कंप्यूटर तैयार हो जाता है मुकम्मल इस्तेमाल करने के लिए। मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के लिए वो कंप्यूटर तैयार हो जाता है और उसके दिमाग में जो सारे प्रोग्रामिंग भरे हुए हैं उसके मुताबिक ही वो जो उसका ये ट्रेंड माइंड बन चुका है, वो ट्रेंड माइंड के तौर पर ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। अगर किसी घर का माहौल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बड़े छोटों के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं और छोटे बड़ों की इज्जत और एहतराम करते हैं, घर में कभी किसी की चुगली नहीं की जाती है, किसी की गीबत नहीं की जाती है, घर के लोगों के गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा प्यारा है, लोग दीनदार हैं, लोग नमाजी हैं, लोग एक दूसरे का हक अदा करते हैं। अगर अपने घर में ये सब कुछ देखा है तो 7 साल के बाद जब वो अमली दुनिया में आएगा तो यही नेक चीज वो नॉर्मल के तौर पर कि वो यही उस लोगों के साथ मामला करेगा, उसका अखलाक भी अच्छा होगा, उसका किरदार भी अच्छा होगा, वो नमाजी होगा, दूसरों को इज्जत देगा, बड़ों की इज्जत करेगा, छोटों के साथ शफकत और प्यार करेगा, एक दूसरे को हक को अदा करेगा, क्योंकि उसने वही देखा और उसने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग इन्हीं चीजों से किया है। और अगर इसके खिलाफ उसके घर का माहौल है, उसके घर में एक दूसरे की इज्जत नहीं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, छोटों पर मोहब्बत नहीं, बड़ों के साथ इज्जत नहीं की जाती है, घर में अच्छा माहौल नहीं, दीनी माहौल नहीं, घर के लोग में नमाजी हैं, घर के लोग झूठ बोलते हैं, जब घर में मोबाइल में घंटी बजती है और किसी का फोन आता है स्क्रीन पर देख करके कि फला आदमी का फोन, यारे वो तो फोन किया है मुझे फला जगह बोला, मुझसे जो मैंने पैसा कर्ज लिया है उसे मांग रहा, बेटे को पकड़ा दिया, 7 साल से कम उम्र का बेटा है, बेटी है, तो बोलता बेटा बता दो अब्बू घर में नहीं है, बेटा बता दो कि अब्बू घर में नहीं है, बेटी बता दो कि अब्बू घर में नहीं है। ये 7 साल की उम्र में आपने एक छोटी सी मुसीबत के लिए अपने आप को छुटकारा हासिल करने के लिए, दिलाने के लिए आपने कहा कि बेटा बता दो कि अब्बू घर में नहीं है। आपने दबे लफ्जों में क्या किया आपको कुछ पता है? गोया कि आपने अपने बेटे को और अपनी बेटी को तालीम दिया और उसके दिमाग में ये रिकॉर्ड करा दिया कि बेटा जब कभी ये सूरत हाल पेश आए, जब कभी ये सिचुएशन हो कि तुमको किसी से डर हो, खौफ हो, किसी को कुछ देना हो, तो आप झूठ बोल करके निकल सकते हो। झूठ बोल दो कि मैं घर में नहीं हूं या मैं तुमको नहीं दे सकता। तुमने उस झूठ की अपने बच्चों को तालीम दी और उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कराया कि तुम अपनी अमली जिंदगी में झूठ बोलना, और वो झूठ जो अकबरुल कबाइर है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक मोमिन चोरी कर सकता है, एक मोमिन जिना कर सकता है, एक मोमिन और कुछ कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि क्या मैं बड़े गुनाहों में से बड़े गुनाह के बारे में बताऊं? अकबरुल कबाइर, जो बड़े बड़े गुनाह है, उन बड़े बड़े गुनाहों में से बड़े बड़े, यानी कबाइर में से भी बड़े जो है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने कहा कि अकबरुल कबाइर में से ये भी है कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। कबाइर में से बड़े गुनाहों में से बड़े बड़े गुनाहों में से ये भी है वालिदैन की नाफरमानी की जाए, और बड़े गुनाहों में से ये भी गुनाह है कि मैदान जंग से भागा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, आराम से बैठ करके आपने शिर्क की बात की, आराम से बैठ करके अल्लाह के रसूल ने माँ बाप की नाफरमानी की बात की, आराम से बैठ करके अल्लाह के रसूल ने मैदान जंग से भागने की बात की। लेकिन जब चौथी बात कहनी हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगातार सही से बैठ जाते हैं और अच्छे से बैठते हैं, सामने वालों को ये तस्वीर देने के लिए, ये ख्याल देने के लिए कि अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये बहुत अहम है, इसको ध्यान से सुनना। ये अकबरुल कबाइर में से जरूर है लेकिन बहुत अहम है। मेरे भाइयों, पूरी तैयारी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और चौथा जो सबसे बड़ा गुनाह वो झूठ बोलना। वो क्या है? झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। शिर्क की बात अल्लाह के रसूल जो ऐसा गुनाह है जो बगैर तौबा के अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई शिर्क करके इस दुनिया से जाता है, तौबा किए बगैर जाता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह उसे माफ नहीं
फरमाएगा। माँ बाप की नाफरमानी, उस माँ बाप की नाफरमानी जिसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हाल नहीं है, और उसकी भी बात अल्लाह रसूल ने बड़े इत्मीनान से की। लेकिन झूठ के बारे में जब बताना हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही से बैठ गए और उसके बाद बताया कि झूठ बोलना भी सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे बड़े गुनाहों में से गुनाह है। तो मेरे भाइयों, एक छोटी सी राहत के लिए और छोटा सा आराम के लिए आपने बड़े आराम से अपने बच्चों को कह दिया कि बेटा बता दो कि वो घर में नहीं है, आपने झूठ की तालीम दी। तो मेरे भाइयों, तो ये मैं कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि 7 साल 0 साल से लेकर के 7 साल की उम्र तक ये बच्चों की तालीम और तरबियत के लिहाज से बहुत ही अहम होता है। मैं एक हदीस की रोशनी में आपको बताता हूँ ये मरहला कितना नाजुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, सही रास्ते पर पैदा होता है। फअबवाहु, उसके वालिदैन युहव्विदानी, उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, और युनस्सिरानी, या तो उसे नसरानी बना देते, और युमज्जिसानी, या उसे मजूसी बना देते। ये हदीस तो हमने 12 सुना है, हमने जुमा के खुतबों में और तकरीर के इस ये जलसों के स्टेज में हमने हदीस 12 सुना है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, गौर किया कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कहा कि बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते, नसरानी बना देते, या तो उसे फिर मजूसी बना देते, वो जिस अखलाक और किरदार के मालिक या उस दीन धर्म के मालिक वो उसे बना देते। क्यों ऐसा कहा? मेरे भाइयों, आप इस हदीस को सामने रखिए और ये माहिरीन नफ्सियात की उस तहकीक और उस इजाद और उस तालीम की को सामने रखिए जिसने कहा कि बच्चा 0 साल से लेकर के 7 साल तक वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, अपने माँ बाप को जो करते हुए सुनता है उसको रिकॉर्ड करता है, अपने दादा दादी को जो कहते हुए करते हुए बोलते हुए सुनता है, देखता है, वो रिकॉर्ड करता है, और आने जाने वाले लोगों से जो देखता सुनता है रिकॉर्ड करता है। क्योंकि इसी 7 साल की पीरियड में बच्चे का कंप्यूटर, उसका हार्ड डिस्क मुकम्मल हो जाता है, 99% वो भर लेता है, उसका माइंड ट्रेन हो जाता है, उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है। ये है, और ये बच्चा 7 साल तक ज्यादातर अपना वक्त कहां गुजारता है? 7 साल तक, विलादत से लेकर के 7 साल तक बच्चा अपना ज्यादा वक्त कहां गुजारता है? अपने वालिदैन के साथ, घर में अपने वालिदैन के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने बड़े भाई और बड़ी बहनों के साथ गुजारता है। तो जाहिर है कि यही वालिदैन उस बच्चे को यहूदी, नसरानी, मजूसी या जिस दिनों धर्म के होते हैं, जिस अखलाक किरदार के होते हैं, उसे वो बना देते हैं। क्योंकि इसी पीरियड में उसका दिमाग प्रोग्रेस करता है, उसी पीरियड में उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। तो वो जिस तरह प्रोग्राम अपने वालिदैन को जैसा देखता है वैसे उसके दिमाग की प्रोग्राम हो जाती है। अगर उसके वालिदैन मुसलमान होते तो बच्चा मुसलमान हो जाता है, अगर उसके वालिदैन सच्चे पक्के मुसलमान होते तो वो बच्चा सच्चा पक्का और सच्चा मुसलमान होता। उसके वालिदैन अगर साहिबी किरदार होते तो वो भी बच्चा साहिबी किरदार होता है। उसके वालिदैन अगर एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले होते, उसके दादा दादी एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले होते, उसके वालिदैन एक दूसरे की इज्जत करने वाले होते, तो वो बच्चा भी अपने दिमाग में वैसे प्रोग्रामिंग करता है और फिर उसका भी दिमाग वैसे बनता है, और बाद में अमली मैदान में वो भी वैसे दूसरों के साथ मामला और तामुल करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब है कि इस पीरियड तरबियत के एतबार से बच्चों का ये मरहला बहुत ही नाजुक होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस मरहले में, इस पीरियड में बच्चों के सामने कोई बेहूदगी नहीं करनी चाहिए, कोई बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। और हम लोग, अरे तो छोटे होके कुछ काम करना हो, अरे देखो फलाना अभी है, वो कैसा, वो छोटा है कि ना बुझता, छोटा है, और वो छोटे बच्चे के सामने वालिदैन ना जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि बच्चा समझ नहीं रहा है? आप सब समझ रहे हैं, और वो बच्चा वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो जो बाकी जिंदगी उसको दोहराएगा। वो आप अपने बच्चों के सामने इस पीरियड में बिलखुसूस कोई ऐसी हरकत ना करे जो बच्चे की जिंदगी पर और उसकी तालीम और तरबियत पर गलत असर करे। आप बच्चों के सामने ऐसी जुबान का इस्तेमाल ना करें, कोई बाजारी जुबान का इस्तेमाल ना करें, एक गैर मुहज़्ज़ब
इंसान की जुबान इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसी जुबान अपने घरों में ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा भी बाजारी जुबान वाला होगा और ऐसे बेहुदा जुबान वाला होगा। तो बच्चे का घर का इस पीरियड में घर का माहौल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए घर का माहौल बेहतरीन। अगर आप अपने बच्चे को एक बाखलाक देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी ये बेटी एक साहिब किरदार हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा यह बेटा साहिब किरदार हो, आप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कौम का लीडर बने, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी एक बड़ी दाइया हो, कौम की लीडर हो, तो आपको उसी नजर से अपने बच्चों को देखना होगा। ये मुस्तकबिल का मेरा बेटा लीडर है, मुस्तकबिल की मेरी बेटी की बड़ी दाइया है, उसी नजर से देखना होगा। और पैदाइश से लेकर के जब तक वो 7 साल और 7 साल के बाद तक आप उस बच्चे के साथ वैसे मामला करना होगा, वैसे जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं आप वैसे आपको करना होगा। बच्चा चूंकि वो सुनता नहीं है, इस पीरियड में बच्चा सुनता नहीं है, यानी वो नहीं करता जो वो सुनता है, बल्कि बच्चा उस पीरियड में वही करता है जो देखता है, जो देखता है। तो आपका घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर में आज हम घरों में क्या करते हैं, घरों में अगर किसी का पोस्टर लगाना हो तो किसका पोस्टर लगाते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा किसका पोस्टर होता है घर में? दीवारों पर किसका पोस्टर होता? किसी खान का होता है ना, किसी खान का। घरों में तस्करा किसका? आजकल किसका तस्करा किया जा रहा है घरों में? हर घरों में अभी कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में। किसके बारे में तस्करा करते हैं? क्रिकेट, आईपीएल बोलते हैं ना, आईपीएल, और उस आईपीएल का फला ये बॉलर और फला बैट्समैन और फला ऐसा वैसा, वो उनके बारे में तस्करा किया जाता है। घरों में क्या हमने कभी अपने बच्चों के सामने खालिद वलीद का तस्करा किया? क्या हमने उन बच्चों के सामने हजरत आयशा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क्या तस्करा किया? क्या हमने खुलफा राशिदीन के वाकयात अपने बच्चों को सुनाया? सहाबाए किराम के और हमारे जो बड़े बड़े जर्नैल हैं उनका वाकया सुनाया? हमने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुनाया? नहीं सुनाया। घरों में ये गुफ्तगू नहीं होती, घरों में रुपये पैसे की गुफ्तगू होती है, घरों में हीरो हीरोइन की गुफ्तगू होती है, घरों में क्रिकेटर और खिलाड़ियों की गुफ्तगू होती है। वो बच्चा क्या होगा? ऐसे गुफ्तगू, ऐसा माहौल से जो बच्चा पैदा होगा और ऐसे माहौल से बन के निकलेगा तो वो क्या बनेगा? वो खालिद वलीद बनेगा क्या? वो इमाम बुखारी बनेगा क्या? बनेगा क्या मेरे भाई? वो नहीं बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा। अगर आप अपने बच्चे को उमर बिन खत्ताब बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाइए कि वो माहौल उसको उमर बिन खत्ताब बनाए। अगर आप अपने बेटे को खालिद वलीद बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बेटे को हज़रत इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस बनाना चाहते हैं, अगर आप इमाम इब्न तैमिया जैसा बनाना चाहते हैं तो आप घर का माहौल ऐसा बनाना होगा। ऐसा मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा था, टाइम बहुत आगे निकल चुका है, मैं ये कह रहा था कि तरबियत के लिहाज से बच्चों को 3 मरहले में तकसीम करें, 0 से लेकर 7 साल, फिर 7 साल से लेकर के 14 साल, 14 साल से लेकर ऊपर। अब यहाँ 7 साल का मरहला बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसी दरमियान में बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है, उसका दिमाग। और मेरे भाइयों में एक बात और बताऊं, बच्चा जो अल्लाह ताला, चाहे लड़की की शक्ल में हो या लड़के की शक्ल में, अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम तोहफा इनात किया है, अजीम तोहफा, अजीम तोहफा। अगर हमने उस बच्चे की सही तालीम और तरबियत दें, उसकी सही तरबियत दी और हमने उसकी सही तालीम दी तो एक बड़ा से बड़ा इंसान बन सकता है। वो हर बच्चा बरगद के एक बीज के मानिंद होता है। जिस तरह बरगद के बोड़ गाछक दाना बोड़ गाछ जगह बोड़ो हुए, हर बच्चा बीज बरगद के बीज के मानिंद होता है। अगर हमने जिस तरह छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ और पौधा बनता है, एक बड़ा पेड़ बनने की उसके अंदर सलाहियत होती है, इसी तरह जब वो बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बड़ा से बड़ा इंसान बनने की सलाहियत देकर उसको पैदा करता है, एक ऐसे पोटेंशियल के साथ पैदा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन जाए।
اور لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس طرح برکت کا ہر بیج وہ برکت کا پیڑ نہیں بنتا، بلکہ وہی بیج برکت کا پیڑ بنتا ہے جس کے لیے صحیح زمین ملتی ہے، صحیح آب و ہوا ملتی ہے، جس کے لیے صحیح روشنی دستیاب کی جاتی ہے، دستیاب ہوتی، وہی ایک بڑا پیڑ بنتا ہے۔ اسی طرح بچہ بھی وہی بڑا انسان بنتا ہے جس کی صحیح تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی مخفی صلاحیتوں کا انداز لگایا اور ان کی چھپی صلاحیتوں کو باہر نکال پایا اور اس کی اسی حساب سے تعلیم و تربیت دی، تو وہ وقت کا بڑا انسان بن سکتا ہے، وقت کا بڑا رہنما بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے اولاد کو پہچانا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اولاد کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اولاد جس کا ہمیں جواب دینا اللہ رب العالمین کے یہاں میرے بھائیو، تو یہ میں کہہ رہا 7 سال 0 سال سے 7 سال تک اس کا مرحلہ جو ہوتا ہے بہت ہی اہم اور بہت نازک ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے اب 7 سال کے بعد بچے کے اندر صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اس کو بھی یہ ماہر نفسیات کی تحقیق ہے اور حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے اور اس کی تائید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 7 سال سے پہلے نہیں کہا۔ کیوں 7 سال کے بعد کہا؟ کیونکہ 7 سال سے پہلے وہ حق اور ناحق، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ اس عمر 7 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو پھر اس کا دماغ صحیح غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ تو 7 سال کا جب ہو جاؤ نماز کا حکم دو۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ یہ بھی مرحلہ پہلے مرحلے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسی مرحلے میں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اسکول اور مدرسوں میں۔ میں آپ کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہم پر فرض بنتی ہے، والدین پر یہ بنیادی حق عائد ہوتا ہے اپنے بچوں کے تئیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیم کا انتظام کرے۔ صحیح تعلیم، یوں تو تعلیم ادارے بہت سارے میرے بھائیوں، کیسی جگہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں؟ کون سی تعلیم دیں؟ دینی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم دیں، کون سی تعلیم دیں؟ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو اول تو یہ تقسیم دینی اور دنیاوی شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ یہ دینی تعلیم اور شرعی تعلیم، دینی تعلیم شرعی تعلیم ہی درست نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے اگر کوئی تقسیم سکھایا ہے تو وہ یہ کہ علم نافع اور علم غیر نافع، جو ایک مشہور دعا ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، دعا کرتا اللہ رب العالمین سے مانگتے اللہم انی اسألک علم نافع، کہ اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے علم نافع دے فرما۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا اللہم انی اسألک علما شرعیا علما دینیا، علما نافعا کہا۔ تو ہر مسلمان کو علم نافع سیکھنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اور روزے رکھنا فرض ہے، اور دیگر جو فرائض ہیں ایسے ہی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علم نافع۔ جتنے سارے علوم جو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے نفع بخش ہیں وہ سارے علوم ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن شروعات ہمیں دینی تعلیم سے کرنی چاہیے۔ دینی تعلیم کو بیس بنانا چاہیے، بغیر دینی تعلیم کے ہمیں بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ صرف ہمیں اسکول میں بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، ہمیں مدرسے کی بھی تعلیم دینی چاہیے، اور مدرسے اور مسجد اسکول نہیں بلکہ ہمیں تو ایسے ادارے ہم کو قائم کرنا چاہیے جہاں سارے علوم نافع کا انتظام ہو۔ علوم نافع اس مدرسے سے پڑھ لکھ کر کے جہاں ایک لڑکا محدث بنے، جہاں ایک لڑکا مقرر اور حافظ قرآن بنے، جہاں اور ایک قاری بنے، وہی اسی مدرسے سے پڑھ لکھ کر کے اور آگے کی تعلیم حاصل کر کے بچہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، IAS آفیسر بنے، IPS آفیسر بھی بنے، اور جتنے سارے علوم کی ہمیں ضرورت ہے اور آج امت کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں صحیح تعلیم و تربیت کا نظم ہے۔ محض اس بنیاد پر کسی انگلش اسکول میں نہ ڈالے کہ میرا بچہ اگر وہاں پڑھ لے گا تو چند سالوں میں وہ پھرراٹے کے ساتھ انگلش بول لے گا۔ میرے بھائیوں آپ کے ساتھ وہ بچہ یقیناً چند سالوں میں آپ انگلش تو ضرور بول لے گا، لیکن انگلش کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سیکھ کے آئے گا۔
اور आके आपके घर वालों को सिखाएगा। तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं, आप ऐसी जगह ऐसे इदारों में डालें जहां का निसाब तालीम दुरुस्त है, जहां का निसाब पढ़ करके बच्चा जहां दीनी एतबार से तो आगे बढ़े, आगे तरक्की करे, दुनियावी एतबार से भी तरक्की करे, जहां दुनियावी एतबार से तरक्की करे, दीनी एतबार से भी तरक्की करे, वो निसाब, उस ऐसे निसाब वाले स्कूल का इंतखाब करें जिस स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर बेहतर हैं, जहां के पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं, अखलाकमंद, बाकिरदार है, झूठ ना बोलने वाले हो, गद्दार ना हो, मक्कार ना हो, जहां ये तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी देते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, ऐसे इदारों में अपने बच्चों को भेजें। और अगर ऐसे इदारे नहीं है तो आप ऐसे इदारों की बुनियाद रखें, ऐसे इदारे काम करें। यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना शमशीर हफीजुल्लाह ने मुझे बंबई में मुलाकात हुई, तुम्हें बताया कि जलसा है 15 तारीख को, और उस जलसे में आपको आना भी है, और इसलिए भी आना है कि मैं एक स्कूल की मैं बुनियाद रखने वाला हूं, एक इस्लामिक स्कूल जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होगी। बड़ी खुशी हुई, और मैं उनसे कहा कि मैं जरूर उस प्रोग्राम में शिरकत करूंगा, और उनसे यह भी कहा कि जहां तक मुझसे हो सके इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपको ताउन करूंगा। तो इस तरह की स्कूल आप काम करें जहां दीन और दुनिया दोनों तालीम का इंतजाम हो, यानी जहां तमाम तरह के उलूम नाफिया पढ़ाए जाते हैं, ऐसे इदारे कायम करें और ऐसे इदारे को आगे बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं, ताकि पढ़ लिख करके हमारे बच्चे तैयार हो, और जो आज हिंदुस्तान में हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल मफकूद है हर मैदान में, ताकि पढ़ लिख करके वो बच्चे हमारे नुमाइंदा बने, हमारी नुमाइंदगी करें, और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात से उम्मत मुस्लिमा को बाहर निकालें। तो ये मरहला मेरे भाइयों, दूसरा मरहला भी बहुत अहम है, क्योंकि इस मरहले में बच्चों की तालीम और तरबियत दी जाती है। तो तालीम और तरबियत के लिए अच्छे इदारे का इंतखाब करें। अच्छे इदारे के साथ साथ सबसे पहले आपको अपना घर का माहौल बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को सही तालीम देना चाहते हैं, सही तरबियत देना चाहते हैं, अगर आप मुस्तकबिल में आप अपने बच्चे को एक लीडर देखना चाहते हैं, एक बाकिरदार इंसान देखना चाहते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा बनाना होगा। उसके बाद फिर अच्छे तालीमी इदारे का इंतखाब करना होगा। अच्छे तालीमी इदारे के इंतखाब के साथ साथ फिर आप अपने बच्चों की निगरानी भी करनी होगी, अपने बच्चों की निगरानी भी करनी होगी कि मेरा बच्चा कैसे दोस्तों के साथ घूम रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, मेरी बच्ची की सहेलियां कैसी हैं, जिस माहौल में मेरा बच्चा है उसका माहौल कैसा है, उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप कितनी भी आप तालीम दें अपने घर में, घर का माहौल जितना भी अच्छा बना लें, जितने भी अच्छे स्कूल आप मुंतखब कर लें अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे नहीं है, आपके बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत जाये हो सकती है, आपकी मेहनत जाये हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, अर्रजुलु अला दीन खलीली, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी दोस्त का जैसा दीन धर्म, दोस्त के जैसे अखलाक और किरदार, और जो दोस्त जिस हैसियत का मालिक वैसे ही वो भी बन जाता है। अगर दोस्त नमाजी है तो ये भी नमाज पढ़ेगा, दोस्त अगर सच बोलने वाले तो ये भी सच बोलने वाला होगा, अगर दोस्त बेनमाजी है, झूठ बोलने वाले हैं, दोस्त अगर बाकिरदार नहीं है, उनके अखलाक किरदार दोस्त नहीं है, तो ये भी वैसे हो सकता है। नमाज तो अब जब बच्चा दोस्तों के साथ होता है, आसान हो जाती है, तो फिर वो घर की तरबियत का असर होता है, स्कूल की तरबियत का असर होता है कि वो नमाज के मस्जिद जाए। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं अरे अभी तो अजान ही हुई, बैठो ना, अभी चलेंगे, क्या जल्दी कर रहा है, क्या जल्दी कर रहा है, चाय तो पी ले, चाय बन रही है। उसके बाद फिर चाय पीते पीते इकामत का टाइम हो जाता है, वक्त हो जाता है, वो जाना चाहता है, अरे रुको भाई अभी जोहर का वक्त है, लंबा वक्त है ये, अगर नमाज छूट भी गई है तो क्या है, चल के पढ़ लेंगे ना, दूसरी जमात कर लेंगे। जमात चली गई, उसके बाद फिर वो भी उसके साथ रह गए, नमाज छोड़ गए, किसकी वजह से, दोस्तों की वजह से। तो आप अगर बच्चों को सही तालीम और तरबियत देना चाहते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के साथ साथ अच्छे स्कूल के इंतखाब करने के साथ साथ आप अपने बच्चों की निगरानी भी करें कि आपका बच्चा कैसे कैसे बच्चों के साथ उठता बैठता है, उसके दोस्त कैसे, मेरी बच्ची की सहेलियां कैसी हैं। क्योंकि अगर उसके दोस्त अच्छे नहीं है तो आपकी मेहनत जाया हो सकती है। उसके बाद मेरे भाइयों बहुत सारी चीजें हैं। अब तीसरा मरहला आता है 14 साल की उम्र। 14 साल की उम्र तरबियत के एतबार, तालीम तो होगी पर तरबियत के एतबार से उसका मरहला खत्म हो जाता है।
क्योंकि वो एक उसका दिमाग पक चुका होता है, अब वो मुकम्मल आदमी बन जाता है। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग ट्रेन हो चुका है और अब उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाएगा। अब इस मरहले में अगर दोनों मरहले में अगर आपसे कोताही हुई, और यकीनन हमसे कोताही हुई है, हमने पहले मरहले में भी हमने बच्चों से तरबियत नहीं दी, दूसरे मरहले में नहीं, यकीनन कोताही। अब हम क्या कर सकते उनके लिए, तरबियत के लिहाज से हम उनके लिए दुआएं करें। और सबसे पहले तो माफी मांगे अपने बच्चों से, अपने बच्चों से माफी मांगे कि बेटा 7 साल की उम्र तक तुम्हारे साथ मुझे जैसा तामुल करना चाहिए और तालीम और तरबियत के लिए जैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, मैंने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया। और उसके बाद 7-14 साल तक तुम्हारी तरबियत जैसी करनी चाहिए वो वैसे अभी नहीं किया, मेरी कोताही है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी मांगिए उनसे और उससे उससे गुजारिश कीजिए कि बेटा आप अपने आप को संभालो और अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करे कि मेरे बेटे को अल्लाह मुझे ठीक कर दे, उसे सही कर दे, उसके अखलाक को सुधार दे। तो ये मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैंने आपको बताया, तरबियत के एतबार से बच्चों के 3 मराहिल हैं और अपने अपने मराहिल की अपनी खुसूसियतें हैं। अब अगर आप अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत कर लेते हैं तो मेरे भाइयों आपको क्या मिलेगा इस दुनिया में? इस दुनिया में भी मिलेगा आपको, आखिरत में मिलेगा, सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मिलेगा। इस दुनिया में क्या है, आपने अपना हक अदा किया, बच्चों के तई जो हुकूक आप पर आयद होते वो हुकूक आयद किया। और जब बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, नेक साली इंसान बनेगा और कौम का जब लीडर बनेगा तो पूछा जाए कौन है ये, फला मोहम्मद, किसका लड़का? अब्दुल रहमान का। आपका नाम क्या? अब्दुल रहमान। अच्छा माशाअल्लाह, अब्दुल रहमान भाई ने अपने बेटे के बहुत अच्छी तरबियत। जब एक लड़की पढ़ लिख करके एक अच्छी दाइया बनेगी और जब औरतों के दरमियान एक दावत का काम करेगी, लोग पूछेंगे ये कौन सी बच्ची है? ये अब्दुल रहमान की बच्ची। ओ माशाअल्लाह, अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छी तरबियत अपने बच्चों की। तो इस तरह से वो सारे लोग आपको दुआएं देंगे, आपकी नेक नामी होगी। और मेरे भाइयों उससे बढ़कर मैं इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करूंगा, इससे बढ़कर आखिरत में भी आपके बच्चे आपकी नेक नामी और आपकी बुलंदी दर्जात के सबब बनेंगे। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस से तखरीज इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद के अंदर और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में तखरीज की है कि वो बयान करते हैं। बस एक हदीस पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, इन्न रजुला लतुरफउ दरजतु फिल जन्नह फयक़ूल अन्ना ली हादा फयुक़ाल इस्तिग़फ़ार वलदिका लक। एक आदमी जन्नत जाएगा और जन्नत में जाकर के उसका दर्जा बहुत बुलंद होगा, बड़े बड़े बागात, बड़ी बिल्डिंग, बड़े बंगले और बहुत सारी नेमतें। तो वो पूछेगा कि ये सब कहां से मिला मुझे? अन्ना ली हादा, ये कैसे? मेरा अमल तो ऐसा नहीं है, मेरा अमल ऐसा नहीं है। तो फिर उसे कहा जाएगा बिस्तिग़फ़ार वलदिका लक, बिस्तिग़फ़ार वलदिका लक। ये जो बुलंदी दर्जा, ये बड़ा बंगला, ये बड़े बागात और ये बड़ी लहरें और ये सारी नेमतें जो तुमको दी गई है, ये तुम्हारे उस बेटे और तुम्हारी उस बेटे के इस्तिग़फ़ार की वजह से, दुआए मग़फ़िरत की वजह से जो तुमने दुनिया में छोड़ के आया। तुम दुनिया से आ गए, तुमने अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत दी, नेक बना करके नेक औलाद छोड़ के आया था। तो वो औलाद तुम्हारे लिए रात को उठ करके, रात के आखिरी पहर में उठ करके वो तहज्जुद की नमाज के बाद वो तुम्हारे दुआ करते, इलाह आलमीन मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, इलाह आलमीन हमें नहीं पता वो किन हालात में है, इलाह आलमीन अगर उससे कुछ लफ्जिशें हुई है उनकी लफ्जिशों को माफ करना, उनके गुनाहों को माफ करना, उनके दर्जात को बुलंद करना, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करना। ये दुआएं करते थे तुम्हारे लिए तुम्हारे मरने के बाद, और उनकी दुआओं की बरकत है, तुम्हारे उस बेटे की दुआ की बरकत है, तुम्हारी बेटी की दुआ की बरकत है, आज तुमको ये दर्जा मिला है मेरे भाइयों। तो अगर आप अपना हक अपने बच्चों के हुकूक इस दुनिया में अदा करते हैं तो इस दुनिया में भी नेक नामी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपका दर्जा बुलंद किया जाएगा। और अगर आपने अपने बच्चों के हुकूक को ज़ाय किया, इस दुनिया में भी बदनामी होगी और आखिरत में भी हो सकता है कि अफसोस का यह काफी अफसोस आपको बनना पड़ेगा। लिहाजा मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, इस मैसेज के साथ और इस गुजारिश के साथ मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, हम में से हर कोई साहिब औलाद है और जो नहीं है हम उससे दुआ करते हैं अल्लाह उसे भी साहिब औलाद बना। तो जिसके भी पास बच्चे हैं उन बच्चों को समझें,
اللہ نے ہم کو کتنا عظیم تحفہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت دیں اور اسے ایک اچھا انسان، ایک پکا سچا انسان بنائیں، ایک قابل انسان بنائیں اور قوم کی رہنما، قوم کی رہنمائی کرنے والے اور قوم کو آگے لے جانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اپنے ایک دوسرے کو حقوق کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بچوں کے جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے بچوں کو اس لائق بنانے کی توفیق عطا فرما جس سے وہ ہمارے آج امت مسلمہ کو جن حالات سے وہ نکال سکیں۔ مولا جب تک دنیا میں رہے اعمال صالحہ کے ساتھ رہیں، صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اعمال صالحہ کے ساتھ خاتمہ ہو، صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔